Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ziaullah Khan, consultant pediatrician, and my topic of presentation today is neonatal resuscitation. And these are latest guidelines. These guidelines are basically based on the recommendations from International Liaison Committee on Resuscitation and American Academy of Pediatrics. And these have been approved by Neonatal Resuscitation Committee of Pakistan and Pakistan Pediatric Association. These are latest guidelines. As we all know that neonatal period is the most vulnerable period with 47% of under 5 mortality occurring in the neonatal period. And if you see the mortality, the causes of mortality, asphyxia is one of the 3 leading causes of neonatal mortality, and its prevention is basically based on the care of the mother during the pregnancy and optimal care, that is resuscitating the newborn after delivery. Approximately 85% of the neonates which deliver will initiate spontaneous respiration within 10 to 20 seconds of life, and remaining 15% of live births, they will need help, and about 3% of these 15% neonates will require resuscitation, that is in the form of chest compressions and positive pressure ventilation. Neonatal resuscitation is basically a detailed workshop. It requires manuals, it requires practical things, but here I'm going to highlight some practical issues in our labor room and operation theatre. So first of all, preparation. What is the preparation for care of a newborn? ये थोड़ा सा डेटा है मोर्टेलिटी का. Annual number of births in Pakistan is about 5 to 8 million, and annual number of children under 5-year deaths is 3,77,000 with neonatal mortality rate of 40 per 1,000 live births. And annual number of neonatal deaths in Pakistan is about 2,32,000 annually. And 69% conducted by the skilled birth attendants, 66% conducted in institutions, and access to skilled birth attendant in urban areas is 70%, and access to skilled birth attendant in rural areas is 30%, and neonatal deaths from asphyxia is 25%, and serious neurological sequelae is 25%. So our main focus will be on, resuscitation to prevent the neonates from asphyxia. So preparation. GB का हमारे पास कोई डेटा नहीं आया मैम, ये 2020 का है डेटा. अच्छा, सबसे पहले प्रिपरेशन है. नर्सिंग स्टाफ हैं हमारे यहाँ पे, कोई लेबर रूम ओटी का कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं आया ना. सबसे पहले प्रिपरेशन है कि जब डिलीवरी हो रही हो उसके लिए क्या क्या हमने प्रिपरेशन करनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिव्यू ऑफ नोट्स हमने रिव्यू करने हैं. जैसे यहाँ पे पीडियाट्रिशियन बैठे हुए हैं, एंटीनेटल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी कम्युनिकेशन होती है, रिस्क फैक्टर्स हम पूछते होते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड के बारे में, PIH के बारे में, CTG हमने रिव्यू करनी होती है. इसके अलावा जस्टेशन वगैरह, प्री टर्मर है, टर्म है, क्या है. तो रिव्यू ऑफ नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स से हमने कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि एक वो डिलीवरी का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला होता है. पेरेंट्स वगैरह, मदर भी एंजाइटी में होती है, तो उनसे हमने कम्युनिकेट करना होता है, उनको अश्योर करना होता है कि हम बेस्ट सर्विसेज देंगे. उसके बाद जो है
थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी एंड द रिससिटेशन एरिया। तो दिस शुड बी अ वार्म एंड क्लीन वेल लाइटेड रूम। अमूमन ये होता है कि कुछ जगहों पे जो डिलीवरी टेबल होती है उसी के साथ ही रिससिटेशन एरिया होता है, उससे कनेक्टेड होता है। लेकिन हमारे सेटअप में आपको पता है कि हमारे पास एक डिलीवरी टेबल साथ वार्मर होता है, जो हमारे पास लेबर रूम में भी है और ओटी में भी है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मदर को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मदर की हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसका चेस्ट और एब्डोमेन एरिया हमने क्लीन करना है, ठीक है जी। और जो डिलीवरी कंडक्ट करने वाले या रिससिटेशन वाले लोग हैं, जो भी डॉक्टर है या नर्सिस हैं, वो भी हैंड वॉशिंग जो मेयर्स हैं वो करें। उसके बाद हमारा जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, असल में ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबी थी तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। इक्विपमेंट की सप्लाईज हमने देखनी है। रिससिटेशन ट्रॉली होती है या हमारे पास जैसे वार्मर है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वार्मर प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, और 2 टॉवल्स होने चाहिए, वार्म टॉवल्स। एक से हमने बेबी को ड्राई करना होता है और दूसरे में रैप करना होता है। एक कैप होनी चाहिए बेबी के लिए। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास, अगर पी टर्मर है तो प्लास्टिक बैग्स, पॉलीएथिलीन बैग्स होने चाहिए उसको रैप करने के लिए। सक्शन इक्विपमेंट जो हमारे पास बेबीज़ के लिए होता है, वो या तो पेंगुइन सकर होता है या बल्ब सकर होता है या सक्शन मशीन होती है। तो पेंगुइन सकर तो हमारे पास इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हमारे पास बल्ब होता है सक्शन के लिए, और वो सिंगल यूज़ के लिए होता है, हर बेबी के लिए अलग होता है। एक दफ़ा यूज़ हो गया उसके बाद डिस्कार्ड हो गया। अगर सक्शन मशीन हमारे पास है तो उसका जो प्रेशर है वो दैट शुड बी लेस दैन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके बाद 8 to 12 FR का हमारे पास सक्शन कैथेटर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर जो है हमारे पास फेस मास्क होने चाहिए। प्री टर्मर्स के लिए हम 0-0, जो लो बर्थ है उसके लिए 0 या 1 का। ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास। पल्स ऑक्सीमीटर अब मैंडेटरी हो गया है, और खुदा न खास्ता उसको अगर ईटी की ज़रूरत हो तो प्रॉपर साइज़ की ईटीटी, लैरिंगोस्कोप विद स्ट्रेट ब्लेड्स। ईटीटी अनकफ्ड होती है, 2.5, 3, 3.54, ये न्यूनेट्स के लिए 3-4 स्टैंडर्ड साइज़ है। ड्रग्स जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एड्रेनालिन होनी चाहिए। नैलेक्सोन और सोडियम बाइकार्बोनेट अभी नहीं देते, अभी इसका वो ऑब्सोलीट हो गया। तो नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट और एड्रेनालिन। और इसके अलावा अम्बिलिकस को कट करने के लिए ब्लेड, अम्बिलिकल क्लैम्प्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लॉक। क्योंकि जो नीओनेटल रिससिटेशन में है वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट गोल्डन मिनट, उस फर्स्ट गोल्डन मिनट में अगर रेस्क्यू ब्रेस्ट बच्चे को मिल जाती हैं जो एस्फिक्सिया में है, तो मोर्टेलिटी भी नहीं होगी, मॉर्बिडिटी भी नहीं होगी। तो ये जो फर्स्ट मिनट है आफ्टर डिलीवरी, उसको गोल्डन मिनट कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कहानी जो है ना सेकंड्स की है। तो आपके पास जो ही बच्चा डिलीवर होता है तो अपने क्लॉक को स्टार्ट करना होता है। अब आते हैं कि हमारे पास असेसमेंट कैसे करनी है। हमने सारी चीज़ें रिव्यू कर ली, अच्छा हिस्ट्री ले ली, हमने जो डिलीवरी एरिया, रिससिटेशन एरिया प्रिपेयर कर दिया, इक्विपमेंट हमारे सारे आ गए। अब हमारे पास बेबी डिलीवर हो गया तो पहले 10 सेकंड्स में 2 चीज़ें देखनी है, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ब्रीदिंग को हम कैसे देखेंगे? एक तो हमने चेस्ट मूवमेंट्स देखनी होती है। एक तो होता है ना कि बेबी डिलीवर होगा, विगरसली क्राई कर रहा है, वो बेबी तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एक बेबी आता है जो क्राई नहीं करा, तो उसमें ब्रीदिंग सबसे पहले देखनी है। वो क्या देखनी है कि उसका चेस्ट मूवमेंट्स है कि नहीं है, या उसके माउथ के करीब जाके चीक से हम देख सकते हैं कि हवा लग रही कि नहीं लग रही। या तीसरी चीज़ हमारे पास स्टेथोस्कोप है। हार्ट रेट के लिए या तो हमने अम्बिलिकल पल्स, फीमोरल या कैरोटिड पल्स हम ले रहे होते हैं, या स्टेथोस्कोप से हम देख रहे होते हैं। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग और हार्ट रेट। और इसमें इनको असेस करने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमारे पास 2 पाथवेज होते हैं नीओनेटल रिससिटेशन में। आइदर ये कि वो बच्चा रूटीन केयर में जाएगा या वो रिससिटेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, ये असेस कर लिया। असेस करने के बाद हमने ड्राइंग का प्रोसीजर है अगला, यानी कि अगर एसवीडी है बच्चा, आप लेबर रूम में हैं, आपने मदर के एब्डोमेन और चेस्ट को क्लीन करके प्रिपेयर किया हुआ है,
बच्चा जब डिलीवर होगा मदर के एब्डोमेन के ऊपर एक साइड पे हम लेटाएंगे उसको, ठीक है जी। जो नीचे हमने शीट रखी हुई है उसी से ड्राई करेंगे थॉरोली, लेकिन हम जो ड्राई करना है बिल्कुल जेंटली करना है, ठीक है जी। और अगर बेबी ठीक है तो दूसरी जो वार्म हमने शीट रखी हुई है वो उससे बेबी को रैप करना और कैप पहना देनी है। अच्छा, बेबी और माँ के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, कोई लेयर नहीं होगी। उसके चेस्ट और एब्डोमेन पे बेबी को साइड पे लिटा के, क्योंकि स्किन टू स्किन केयर होगी, और साथ जो दूसरा जो टॉवल हमने वार्म किया हुआ है उससे रैप करेंगे बेबी को, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जो है यहीं पे डिसाइड करना है कि इसको रूटीन केयर चाहिए। रूटीन केयर वाला बच्चा क्या होगा, उसको हम जो है ना अम्बलाकस को क्लैम करेंगे, कट करेंगे 1 to 3 मिनट्स में, ठीक है जी। उसके बाद जो है बेबी के अपने ब्रीदिंग सारी रीअसेस कर ली, बेबी ठीक है, हार्ट रेट भी 100 से ज़्यादा है, बेबी जो है ना पिंक है, एक्रल साइनोसिस तो कुछ देर के लिए होता है। उसके बाद फिर बेबी को मदर के साथ करके हम विद इन 1 आवर जो है ना उसकी फीडिंग इनिशिएट करेंगे। अब रिकमेंडेशन ये है कि विद इन 1 आवर फर्स्ट फीड बेबी को देनी है। ये रूटीन केयर वाला बच्चा है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मदर और बेबी को हमने नहीं छोड़ना अकेला, कि बेबी ठीक है मदर भी ठीक है साथ छोड़ दिया। उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक बंदा साथ होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये रूटीन केयर वाला बच्चा हो गया। अब वो बच्चा जो कि जिसने क्राई नहीं किया, या जो गैस्पिंग कर रहा है, या ये कि जिसकी पुअर क्राई थी, या फ्लैसिड बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल लिम बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा हमारा टारगेट है कि उसको रिसस्टेशन चाहिए। अब अगर ये कि वो बच्चा अगर आपने डिसाइड कर लिया 10 सेकंड्स के अंदर कि ये बच्चा रिसस्टेशन वाला है, इसकी ब्रीदिंग भी ठीक नहीं है, उसको ब्रेडिकार्डिया भी चल रहा है, हार्ट रेट ठीक है ना आपका 100 से नीचे आ रहा है, तो अब आपने ये नहीं देखना कि 1 to 3 मिनट्स तक मैं वेट करके कार्ड को काट के फिर बेबी को रिसस्टेट, नहीं, उसका फ़ौरन कार्ड को, अगर बेबी जो है ना आपका रिसस्टेशन टेबल जो डिलीवरी टेबल के साथ जुड़ी हुई है तो ठीक है, आप वहीं पे साथ शिफ्ट करके उसको वो करें। लेकिन जैसे हमारे सेटअप में है कि वार्मर पड़ा होता है, तो फ़ौरन कार्ड को क्लैम करके कट करके आपने उसको रिसस्टेशन टेबल पे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो पहला स्टेप आता है न्यूट्रल पोजीशन, यानी कि एयरवे, वही जो हम कहते हैं ना ABC, सबसे पहले उसकी एयरवे। एयरवे के लिए न्यूट्रल पोजीशन हम ये कहते हैं कि ना बच्चे का हेड हाइपर फ्लेक्स्ड हो ना हाइपर एक्सटेंडेड हो। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब ये है कि जॉ फॉरवर्ड, चिन लिफ्ट, माउथ को ओपन कर देना है ताकि उसकी एयरवे बेहतर हो जाए। अब ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सक्शनिंग आ जाती है इसके बाद। सक्शनिंग, जैसे हम यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस थी कि जो बच्चा क्राई नहीं करे हम सक्शन यूँ कर रहे होते हैं, सक्शन करो सक्शन करो। सक्शनिंग की अब इंडिकेशन ये है कि अगर आपको विजिबल सिक्रीशंस नज़र आ रही हैं, मेकोनियम नज़र आ रहा है, ठीक है ना, माउथ के अराउंड नोस्ट्रिल में, तो तब आपने सक्शन करना। सक्शन जो है सबसे आप पहले करते हैं माउथ से, एक ही दफ़ा करते हैं, फिर एक नोस्ट्रिल फिर दूसरे नोस्ट्रिल में, या तो आपके पास पेंगुइन से करे या बल्ब से करे, या अगर आपके पास सक्शन मशीन है तो सक्शन मशीन का अपने प्रेशर जैसे पहले बताया था कि इट शुड बी लेस देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, आपने एयरवेयर को क्लियर कर दिया सक्शनिंग। अच्छा, सक्शनिंग ये है कि अगर आप माउथ में कर रहे हैं तो आपने 5 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाना, या अगर नोस्ट्रिल्स में कर रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाना, वरना ब्रेडिकार्डिया एपनिया में चला जाएगा। कोई बता सकता है क्यों जाएगा? पीडियाट्रिक्स वाले, वैगल स्टिमुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये आपने एहतियात करनी है। अब आपने सक्शनिंग कर दिया, इसमें यह कि आपने न्यूट्रलाइजेशन का ये रूल है कि आपने एक काम कर लिया उसके बाद रीअसेस, काम ये आपने इंटरवीन कर लिया, फिर रीअसेसमेंट चलती रहती है। अब आपने सिक्रीशंस भी क्लियर कर दिए तो आपने क्विकली रीअसेस करना है बेबी को, ठीक है ना। बेबी फिर भी आपका गैस्प कर रहा है, बेबी क्राई नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बेबी को बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना, थप्पड़ नहीं मारे, चपेड़ी नहीं मारनी। इसके लिए ये कि आप जो आपके पास वार्म टेबल है उससे बैक को जेंटली रब करें या सोल्स को जेंटली रब करें, ठीक है ना। 3 to 4 टाइम्स इनफ होता है। अगर उसने स्टिमुलेशन से ठीक होना है तो ये 3 to 4 टाइम्स से हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें भी आपके 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब आपने स्टिमुलेट भी कर दिया, उसके बाद फिर रीअसेस पे उसकी ब्रीदिंग फिर रीअसेस करनी है, ठीक है ना। अब अगला आता है हमारे पास स्टेप कि अब बेबी अब फिर भी ठीक नहीं हो रहा, गैस्प कर रहा है, ब्रीदिंग सही नहीं है,
ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है वेंटिलेशन, PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो कि इसका कॉर्नरस्टोन है न्यूनेटल रिससिटेशन का। तो ये अब आपने जब उसको वेंटिलेशन का आपने डिसाइड कर लिया तो फ़ौरन से पल्स ऑक्सीमीटर आपने लगा देना है। अच्छा, पल्स ऑक्सीमीटर में ये कि आपके पास ना आपकी टारगेट सैचुरेशन होती है, मैं टेबल आपको बता देता हूँ। ये मेरे ख्याल है इसमें नहीं है। इसमें यह कि जो आपका टारगेट जो SpO2 होती है, यानी कि हमने टारगेट क्या रखना है, ठीक है ना। 1 मिनट 60 से शुरू होती है। 1 मिनट पे आप सेट से, अच्छा पी डक्टल आपने राइट आर्म पे लेना ना, पी डक्टल लेनी है, राइट आर्म पे आपने पल्स ऑक्सीमीटर को अटैच करना है। तो आपकी जो नॉर्मल फर्स्ट सैचुरेशन होगी 1 मिनट पे वो 60 to 65%, ये जाके आपके 10 मिनट्स पे 85 to 95% पे जाती है। तो इसलिए अगर आप फ़ौरन 1 मिनट पे आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना अगर 65 आ जाती है, तो ये नॉर्मल है 65। जाके 10 मिनट्स पे उस बेबी की सैचुरेशन हो जाएगी 85 to 95%, ठीक है जी। तो इस टारगेट को लेके आपने चलना है कि मेरा टारगेट ये है कि बेबी की सैचुरेशन 10 मिनट्स पे 85 to 95% होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, आपने फिर आपके लिए एम्बू बैग हमारे पास होता है जो कि तकरीबन 250 ml का होता है, वॉल्यूम का होता है, जो बेबीज़ का होता है। उसमें फिर ऑक्सीजन जो है, जो फुल टाइम बेबी आ जाए, आपने जो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी PPV के लिए, तो वो 21% इज़ अनफ। रूम एयर वाले भी अनफ होती है शुरू में, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है रूम एयर में 21% है। हाँ, अगर कोई पी टर्म में बेबी आ जाता है तो वो 21 to 30% तक आप जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका इनिशियल ऑक्सीजन वो होगा, ठीक है। अब आपने बेबी के हेड साइड पे जाना है, अभी आपको वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आपने जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करनी है तो आपने बेबी आपका हेड आपकी तरफ होगा, ठीक है जी। तो उसको न्यूट्रल पोजीशन पे करके मुंह खोल के आपने एप्रोप्रिएट साइज़ का फेस मास्क उसको लगा देना है। जो मास्क होगा वेंटिलेशन के लिए उसकी नोज़ को, थोड़ी सी चिन को और माउथ को पूरा कवर करेगा, आइज़ को नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो मास्क को पकड़ना है वो होता है CNE पोजीशन, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। यानी कि इससे जो है ना आपका C, थंब और इंडेक्स फिंगर से आप क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे नीचे माउथ के ऊपर, और ये जो E बनेगा उससे चिन को लिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। आपके जाव के नीचे होगा ऐसे। ये चीज़ें ऐसी कि आप वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, उसकी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आपने शुरू कर दी, ठीक है ना। अब वो कैसे करनी है, तकरीबन 40 to 6 breaths per minute। तो उसका फॉर्मूला ये कि ब्रेथ 2 3 ब्रेथ, ब्रेथ 2 3 ब्रेथ। जब आप ब्रेथ कहते हैं तो उसको स्क्वीज़ करते हैं, 2 3 में रिलीज़ करते हैं। तो ब्रेथ 2 3 ब्रेथ, आप इस तरह आप करते रहेंगे तो तकरीबन 40 to 60 breaths per minute आपने दे देनी है। अगली चीज़ क्या करेंगे, आप वेंटिलेशन तो कर रहे हैं, अगली चीज़ आपने देखनी है चेस्ट मूव कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है ना। अगर चेस्ट मूव कर रही तो इसका मतलब है कि आपका जो आप जो PPV कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर चेस्ट मूव नहीं करी तो इसका मतलब कि आप सही नहीं कर रहे। अगर चेस्ट मूव कर रही है, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे उसी तरह, और एवरी 30 मिनट्स उनको रीअसेस करते हैं। उसमें रीअसेसमेंट में एवरी 30 मिनट्स, एवरी 30 सेकेंड्स वही चीज़ें देखनी है आप, ब्रीदिंग हार्ट रेट, ये चीज़ें आपने देखनी है। तो अगर बेबी की चेस्ट मूव कर रही है और बेबी इम्प्रूव भी हो रहा है, हार्ट रेट 100 से ऊपर जा रहा है, तो आप तब तक करेंगे जब तक बेबी रिवाइव नहीं होता, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं आ जाती, तब तक उसको करते रहेंगे। एवरी 30 सेकेंड उसको रीअसेस करते रहेंगे। अब अगर बेबी की चेस्ट मूव नहीं कर रही, ठीक है जी, अगला स्टेप आता है कि आपने वेंटिलेशन करेक्टिव मेजर्स करने हैं। यानी कि आपने ये देखना है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। आप दोबारा से क्या करें, सिक्रीशंस हैं बेबी के तो वो साफ़ करें, सक्शन करें, उसकी न्यूट्रल पोजीशन दोबारा बनाएं, माउथ को थोड़ा ओपन करके जो मास्क है उसको अच्छी तरह लगाएं और दोबारा से थोड़ा प्रेशर से करना शुरू कर दें। ये वेंटिलेशन करेक्टिव मेजर्स हैं। वेंटिलेशन करेक्टिव मेजर्स करने के बाद भी आपके पास 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो ठीक है बेबी ठीक हो गया, अगर बेबी ठीक हो रहा है तो आप एवरी 30 सेकेंड उसको रीअसेस करते रहें, PPV कंटिन्यू करें जब तक कि वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं करता। इसके अलावा 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो ये कि
चेस्ट मूव कर रही है, हार्ट रेट भी ऊपर आ गया जो पहले डिस्कस किया। दूसरा सिनेरियो ये कि चेस्ट मूवमेंट नहीं है, हार्ट रेट भी 100 से कम है, वेंटिलेशन करेक्टिव मेजर्स के बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि उसको अंडरलाइंग कोई पैथोलॉजी मौजूद है, या तो उसको निमोथोरेक्स है या तो उसको डायफ्रामेटिक हर्निया है, कोई ऐसी चीज़ है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि चेस्ट मूवमेंट आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ठीक है ना, एयर एंट्री भी ठीक लग रही है दोनों साइड्स पे, लेकिन स्टिल जो है ना उसका जो हार्ट रेट है वो कम है, 60 से कम नीचे है। तो ये वो टाइम आ गया, अगर हार्ट रेट 60 से नीचे चला गया तो आपने हार्ट को रेस्क्यू करना है। तो अब टाइम आ गया चेस्ट कंप्रेशंस का, ठीक है जी। अगर हार्ट रेट 60 से नीचे जाता है और आप देख रहे हैं कि चेस्ट मूवमेंट भी चल रही है, आपकी पीवीवी सही है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट को हेल्प चाहिए, हार्ट को आपने रेस्क्यू करना है। चेस्ट कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, कार्डिक मसाज होता है। चेस्ट कंप्रेशन इस टाइम पे आ गया। अच्छा, चेस्ट कंप्रेशन आपने बेसिकली जो न्यूनेट्स में हम करते होते हैं, आपने जो चेस्ट कंप्रेशंस करनी होती है, जो एरिया होता है वो लोअर थर्ड ऑफ द स्टेर्नम होता है। आप अगर एक लाइन ड्रॉ करें निपल के बीच में, उससे एक 1 फिंगर ब्रेथ नीचे, ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आपने चेस्ट कंप्रेशंस करनी है। इसके 2 मेथड्स हैं, या तो 2 फिंगर मेथड है या थंब मेथड है। 2 फिंगर मेथड से थंब मेथड ज़्यादा जो है ना वो रिलायबल है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि दोनों फिंगर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इक्वल नहीं होती ना, उनमें ज़रा फ़र्क होता है, तो उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो आप जो वो वाला मेथड है थंब मेथड, जिसमें आपकी बेबी के चेस्ट को इनसर्कल करते हैं अपने हैंड से, पीछे से आप सपोर्ट दे रहे होते हैं उसकी चेस्ट को। अच्छा, आपके थंब जो है ना वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे ना फ्लेक्स होता है, और वहाँ से आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं वार्मर के नीचे। अब जो चेस्ट कंप्रेशन जो है उसकी जो डेप्थ है वो 1/3 होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, जो टोटल उसका डायमीटर है, एपी डायमीटर, उसका 1/3 होना चाहिए। और जो आपका रेशो बनती है चेस्ट कंप्रेशन वर्सेस जो आप पीपीवी कर रहे हैं, तो 1:3 है, ठीक है ना। इसमें यह कि 1 and 2 and 3 ब्रेथ, यानी कि आपने 1 and 2 and 3 फिर ब्रेथ, 1 and 2 and 3 and ब्रेथ, ठीक है जी। इससे आपके जो है ना तकरीबन पूरे 1 मिनट में 120 इवेंट्स बन जाते हैं पर मिनट, ठीक है ना, दोनों मिला के। अच्छा, फिर वही रूल है कि आपने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दी, एवरी 30 सेकंड आपने रीअसेस करना है ब्रीदिंग और हार्ट रेट, एवरी 30 सेकंड्स। अगर आपके चेस्ट कंप्रेशन के बाद हार्ट रेट आपका 60 से ऊपर चला गया, जब 60 से हार्ट रेट ऊपर चला गया तो आप चेस्ट कंप्रेशन बंद कर दें और पीपीवी कंटिन्यू कर दें अनटिल के बच्चा ठीक नहीं हो जाता, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं आ जाती। अब अगर जो है ना आपकी चेस्ट कंप्रेशन के बावजूद भी हार्ट रेट 60 से नीचे रहता है, तो ये टाइम आता है ड्रग्स का। ये वो टाइम है कि आपने बेबी को ड्रग्स शुरू करवानी है, जिसमें हमारी पास पहली ड्रग है एड्रेनालिन। यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेनालिन है 1:10,000 रेशो वाली है, इसकी जो है ना रूट हम दे सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट कैथेटर शुरू में होना चाहिए प्रिपरेशन में ना, हमारे पास एनजी होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब अमूमन रिससिटेशन प्रोटोकॉल में ये होता है कि एक अकेला बंदा नहीं होता, आपके साथ 2-3 बंदे होते हैं, आपके साथ नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर होता है, कोई मेडिकल ऑफिसर हो सकता है। तो उस वक्त वो टाइम आता है कि आपने अम्बिलिकल वेन से पास करके वहाँ से एड्रेनालिन दे सकते हैं या ईटीटी के थ्रू भी दे सकते हैं। ये 2 रूट्स हैं हमारे पास एड्रेनालिन के। अगर आपने अम्बिलिकल वेन के थ्रू दे रहा है तो 0.1 to 0.3 mg पर kg से है, वो देने के बाद 1 cc नॉर्मल स्लैन से फ्लश करना है। और अगर आप जो है ना ईटीटी के थ्रू देना चाह रहे हैं तो वो 0.5 to 1 mg पर kg से है, वो आपने ईटीटी के थ्रू डाल के ऊपर से आपने एम्बू करना होता है। ये आपने देने के बाद फिर इसी तरह रीअसेस करना है, यानी कि क्योंकि हार्ट रेट 60 से नीचे है तो आपने चेस्ट कंप्रेशन छोड़नी नहीं है। एड्रेनालिन देने का मतलब ये नहीं है कि आपने चेस्ट कंप्रेशन और पीपीवी छोड़ देना, आपने कंटिन्यू करना है और एवरी 30 सेकंड भी असेस करना है। और अगर एड्रेनालिन से भी हार्ट रेट इंप्रूव नहीं होता तो आफ्टर एवरी 3 to 5 मिनट्स आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरी ड्रग्स में वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं, जिसमें नॉर्मल स्लाइन और रिंगल लैक्टेड है। तो अगर कोई बच्चा आपको शॉक में लग रहा है, जिसमें डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम है, ठीक है जी, और हाइपोवोलीमिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, पुअर पल्सेस हैं, तो 10 ml पर kg से नॉर्मल स्लाइन का आप बोलस दे सकते हैं वाया अम्बिलिकल वेन, ठीक है जी, ओवर 3 to 5 मिनट्स, या रिंगल लैक्टेट भी दे सकते हैं। तो ये बस की पॉइंट्स हैं न्यूट्रल रिससिटेशन में। अब
रिसस्टेशन स्टॉप कब करनी है आपने? एक तो हमने शुरू में देख लिया कि अगर बेबी जो है वो रिवाइव हो गया है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग आ गई, हार्ट एंड 100 से ऊपर चला गया है, तो ठीक है, आप स्टॉप कर दें रिसस्टेशन। लेकिन ये कि आपने 20 मिनट्स तक आपने सारे मैनूवर्स कर लिए हैं, आपने चेस्ट कंप्रेशंस भी कर लिए, पीपी भी कर लिया, ड्रग्स भी दे दी, और 20 मिनट से ज़्यादा हो गए और बेबी रिवाइव नहीं कर रहा, तो उस वक्त आप स्टॉप कर सकते हैं। ये दो क्राइटेरियाज हैं रिसस्टेशन की। इसके अलावा फिर पोस्ट रिसस्टेशन केयर है, जिसमें एवरी 30 to 1 आवरली बेबी की रीअसेसमेंट है, ठीक है ना। तो ये फिर और पोस्ट रिसेशन केयर भी एक डिटेल टॉपिक है। तो मेरा ख्याल है आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। Ajib mai ke shi da atu anga buji See whether the child is breathing. If he is still not breathing,
there. Place the mass to remove those animals on the cover. Make a seal and give one, 2, 3, 4, 5. 5 inflation breaths again. Then reassess the check. If it's still not well, then look at the heart rate. And when you are looking at the heart rate, you can use directly stethoscope, or you can palpate the umbilical artery and see feel the pulsations. So if the heart rate is like that's fine. And if it is like is this bradycardia, then you will call one of your team members and you will start chest compressions. So when you are doing chest compressions, it must be kept in mind that both hands should cover the chest. You press the sternum with your thumbs if the camera can focus, and 2/3 of the sternum should be pressed down. 1 and 2 and 3 and breath. So if you have a team member, you will give a breath. If you don't have a team member, then you can give breath yourself, and then you need to start chest compressions. So if there are 2 people, one can do the chest compression, the other can do the upper back. And if you are only alone, then you can also use 2-finger method as well. 1 and 2 and 3 and 3. 1 and 2 and 3 and breathe. So ideally you should have 2 members. So you give cycle of chest compressions in resting breaths in the form of 3 compressions with 1 breath. In 1 minute, you need to give 90 compressions. Or in 2 seconds, you need to give 3 compressions. 3 compressions in 2 seconds. So once you do it, then you reassess the charge. You can do this cycle for 30 seconds and then reassess the heart rate breathing. If the heart rate is still low, the child is still bradycardic, then call another team member, bring adrenaline, and you have adrenaline ready with you, and everything should be given. The latest guidance is previously it was 0.1 ml per kg, but now the guidance is that you will give it 0.2 ml per kg. And remember that adrenaline in Pakistan is actually 1 in 1,000 injection. So you need to dilute it with 9 ml of normal saline. So it will be 1 in 10,000. So you give 0.2 ml per kg adrenaline, and after that, then while one of your team members is giving adrenaline, if the cannula is passed, give it from cannula. If it is not there, you can give it adrenaline. You can give vital vein. And while one of your team members is giving adrenaline, you will continue CPR. You will continue chest compressions in the same ratio, 3:1. After giving adrenaline and doing chest compressions, reassess the child. If he is still bradycardic, then continue the CPR and echo bag and then wait for 3 minutes. After 3 minutes, you can repeat adrenaline. It must be remembered that 3 doses of adrenaline can be given. You should have a stopwatch in whole of this process. Right after the child, you receive the child, the time should start. The first minute is called the golden minute because it is the most important minute in the child's life. You can prevent the child from permanent mental disability by just utilizing this first golden minute properly. Now, if
heart. If heart rate has improved, he has good heart rate now, but he is not breathing well, then you need to pass endotracheal tube. You need to shift the baby on ventilator to that endotracheal tube. If there is no effort at all, like there is no heart rate, no breathing, and you have done everything, then see how much time has passed. If 20 minutes have been passed since the arrival of the child, I repeat, since 20 minutes have been passed since the arrival of the child, and there is no result, you have done everything, child is not surviving, there is no heart rate, no breathing, no effort, then after 20 minutes, you can stop the resuscitation process. Now, what the doctors make common mistakes? Very often, they don't have the correct position and they are not getting the results. Sometimes the chin is flexed. Sometimes the neck is hyperextended. So it should not be hyperextended, it should not be flexed. It should be the child should be supine and the head is slightly down, the chin is slightly lifted, and this should be the position. So now when you do the press, air will go smoothly. Okay. This is one mistake. The other mistake is sometimes the doctors start rushing for the oxygen. Bring oxygen, child needs oxygen. Child doesn't need guidance. If you remember all these steps, even just and go back, there is no need of oxygen. Don't worry if you don't have oxygen. You should be proper these steps. This is best with proper guidelines, proper technique. Most of the children start dealing with this technique. Now, another state is that you get a reply from your team member that I could not pass cannula, cannula is not passed, just don't worry if you don't have cannula. You can give writing, okay, and even you can check the position like an artery investment, like pressing like an artery investment. So this is a very effective way of giving any emergency drug like breathing. And then the babies lose heat very quickly. So if you will not have a warm environment, a warmer heat in the head, the child will lose heat and he will become hypothermic. So always have a gap and make the child near that gap, right? While you are doing the whole process. And the X and T's must be remembered if you are not getting results. The X and T's are hypothermia, hypovolemia, hypoglycemia, and hypertension, and the T's are tension, pneumothorax, and the cardiac component, but they are slightly in the elder age. X are again slightly different mostly. Diaphragmatic hernia, pneumonia aspiration, which I will cover in some other reviews. Today, I think this is enough. Thank you so much. Have a wonderful time. Just utilize this first quarter and save life. Thank you so much. चलें जी दैट्स ऑल सर